So once again, good morning, students. I'm welcoming you in the session of IT. And yes, in the previous session, we have completed the session 3, which was about the performing operations in table. Now it's time to start the session number 4, which is all about the retrieving data using query. So first of all, we have to understand what is a query. What do you mean by the query? So query means just if you will ask me in the general terminology, then I will say you that query is asking something. Query means that we are asking something to our teacher, to our parents, to our friends, or we can say anyone else. So that means if we are asking something, if we are retrieving some data, that means it will be considered as query. Query का meaning क्या आप समझ सकते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में कि if you are asking something, if you are relating something, and if you are retrieving means आप कुछ extract कर रहे हैं information, then it will be considered as query. Okay, so let's understand first its definition. What is a query? So a database query. Mark my point here. We are not considering the general terminology of query. We are considering the database query. So a database query is a request to access data from a database to manipulate it or to retrieve it. That means if we are dealing with a database query, that means it is a kind of request. We are doing the request to the database server, and then it will fetch the data for us, and then we can manipulate it or we can retrieve it also. So now you will ask me, sir, what is retrieve? Retrieve means extracting the data. Okay. So a query helps us join information from different tables and filter that information. That means if we are dealing with multiple tables, yes, we have to deal with multiple tables, then we will write the queries. We will write some commands, we will write some coding commands so that we can extract some data and as well as we can filter that data. Okay. So filtering means that the query uses criteria. What will you use? Criteria. Supposingly, if you have made a table, supposingly, and in which you have just entered two fields, name and score, and in which you have entered so many data in the score field, supposingly 89, 95, 75, and etc. So supposingly, if you want to see or display the name of student who has scored more than 80, so this is your criteria. If you are applying any kind of criteria, if you are giving any kind of condition, what is your condition? That mark should be greater than or equals to 80. Then this will be considered as filtering the data. You are not displaying the whole data. You are displaying the data which will satisfy that criteria. Okay. So that means we are applying filtering. So filtering means that the query uses criteria that you will provide to hide some data and present only what you want to see. I hope am I clear? Okay. So query creation using wizard. Now, as we have seen how we can create a database using wizard, we have seen how we can create a table using wizard. Now we will see how we can create or execute a query using wizard. Okay. Similarly, what we had done in the table creation, this has also the two methods, using design view and using wizard view. So now we are considering the wizard view. So for creating a query, follow the given steps. Click on queries button on the left pane of the opening screen. Opening screen, that means the first interface you see. A screen with different option opens. Click on use wizard to create query. The query wizard dialog box appears. As we do in the normal routine sessions, first we will just see or learn or understand the theoretical aspect of the topic, then we will move to that practical implementation. Okay, so now we are going to understand first theory. So step 1 is field selection. What we need to do is we have to select the field. It's very obvious, students. If we are dealing with a query, if we are asking something, then we have to select that query, that column. ठीक है, अगर अपने को कुछ क्वेरी करनी है, अपने को कुछ अगर फिल्टरिंग करनी है किसी डेटा को, तो अपने को सबसे पहले क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा? फील्ड, यानी कि कॉलम. बहुत सिंपल सी बात है. तो स्टेप 1 अपना क्या हो गया? फील्ड सिलेक्शन. सेलेक्ट द टेबल अकाउंट्स फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ टेबल्स. सपोजिंगली यहाँ पर एक टेबल नाम है जो जिसका नाम है अकाउंट्स. मान लीजिए अपने को इस पे क्वेरी लगानी है, तो अपने इसको पहले सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट से. फिर सेलेक्ट करेंगे फील्ड्स फ्रॉम द टेबल इन द अवेलेबल फील्ड लिस्ट. अब अपने को वो बहुत सारे फील्ड्स दिखा देगा, जैसे कि अगर अकाउंट्स में नेम होगा, सैलरी होगी, एज होगा, तो ये बहुत सारे फील्ड्स हैं. अब वो अपने से कहता है कि कौन सी फील्ड आपको सेलेक्ट करनी है.
चूज द फील्ड टू बी इन द क्वेरी। जो भी आपको क्वेरी के अंदर इंसर्ट करनी है फील्ड, उसको आप इंसर्ट कर सकते हो एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। तो चलिए शुरू में ही अपने क्या करते हैं, इसको थ्योरी ना पढ़ के पहले इसकी प्रैक्टिकल कर लेते हैं ताकि आप लोगों की इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। So here is our just first interface you can see of the OpenOffice. Now you will see tables, queries, forms, and reports. Okay. So now here we need to first click on the tables. Now you can see the table which we have created in the previous session. This is the query. Now we are considering the second database model. So this is the query. Now you will see the create query in design view, create wizard to create query, and SQL query for the view. So now we will understand first use wizard to create query. Here it is. Once again, I'm suggesting you please zoom your screen so you can have better access. देखिए यहाँ पर आपको स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं, फील्ड सिलेक्शन, सॉर्टिंग ऑर्डर, सर्च कंडीशंस, डिटेल्ड और समरी, ग्रुपिंग, ग्रुपिंग कंडीशंस, एलियासेस एंड ओवरव्यू। ठीक है, तो ये जो है 8 स्टेप्स हैं जो अपने को फॉलो करने होते हैं व्हेन वी आर डीलिंग विद क्वेरी विजार्ड। यहाँ पर जैसा कि थ्योरी में बताया गया कि आपके पास टेबल्स होंगे। ठीक है, टेबल्स के अंदर अपने को सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा टेबल अपने को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने एक डमी नाम की टेबल बना रखी है, अपने उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने से क्या बोल रहा है कि भाई फील्ड सेलेक्ट करो। अब डमी नाम के टेबल में आईडी, नेम, क्लास, एज, फीस, स्कोर एंड परसेंटेज, यहाँ पर अपने 7-8 कुछ इसमें कॉलम्स हैं। कॉलम्स यानी कि फील्ड्स। तो अपने को अगर सारे सेलेक्ट करने होंगे तो देखिए ये वाले एरो पे अपने कर ही लेंगे। अगर अपने को पर्टिकुलरली किसी एक को सेलेक्ट करना है तो अपने इस एरो से करेंगे। सपोजिंगली मुझे आईडी चाहिए, नेम चाहिए, लेट्स से फीस और स्कोर। केवल मुझे इतने ही 4 फील्ड्स चाहिए जिसके ऊपर मुझे अपना क्राइटेरिया लगाना है। तो मैं इस पे करूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर अब देखिए, अब ये बता रहा है अपने को सॉर्ट बाय। अब ये अपने से पूछ रहा है कि किस फील्ड के हिसाब से आप सॉर्टिंग करना चाहोगे, किस फील्ड के हिसाब से आप सॉर्टिंग करना चाहोगे। दैट मीन्स अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखिए जो भी मैंने फील्ड सेलेक्ट की थी वहां पर ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में बता रहा है आईडी, नेम, फीस एंड स्कोर। तो यानी कि अपने को जो डेटा देखना है वो किसके हिसाब से देखना है। सपोजिंगली मुझे नेम के हिसाब से डेटा देखना है, तो मैंने यहाँ पर इसको क्या कर सेलेक्ट कर दिया, नेम। अब नेम मुझे असेंडिंग ऑर्डर में देखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है। जब भी आप इसका होमवर्क करेंगे तो आपको ये वाला जो डायग्राम है ये बनाना होगा। अगर अपने को और भी ज्यादा मल्टीपल सॉर्टिंग करनी है तो यहाँ पर अपने पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो मैंने केवल एक नेम पे ही क्लिक किया है कि ठीक है मुझे नेम के अकॉर्डिंग और वो भी असेंडिंग के अकॉर्डिंग मुझे डेटा अपना देखना है। नाउ आई विल क्लिक ऑन द नेक्स्ट। इट विल आस्क मी दैट मैच ऑल ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर यही जो है मेन एरिया है आपका कंडीशन देने का। ये विंडो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट विंडो है। ठीक है, इसको आपको ध्यान से समझना है। ये अपने से पूछ रहा है कि आपको यहाँ पर क्राइटेरिया देना होगा। नाउ यू हैव टू गिव द क्राइटेरिया। दिस इज द फील्ड्स कॉलम, दिस इज द कंडीशन एंड दिस इज द वैल्यू। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है स्टूडेंट्स। इसी में कंफ्यूजन होती है अगर होती है, अदरवाइज ये टॉपिक बहुत इजी है। ठीक है, यहाँ पर आपका फील्ड क्या है, जैसे कि मान लीजिए मुझे केवल उन्हीं बच्चों के नाम देखने हैं जिन्होंने स्कोर किया है 75 से अबव। मार्क माय पॉइंट, मेरी कंडीशन क्या है, जिन्होंने स्कोर किया है 75 से अबव। तो मुझे देखना क्या है, स्कोर। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या है, इज इक्वल्स टू तो आएगा नहीं, अबव आएगा। इज ग्रेटर देन, जो स्कोर जो है वो ग्रेटर देन हो, किससे ग्रेटर देन हो, 75 से। तो मैंने यहाँ पर इसकी क्या दे दी, वैल्यू दे दी। ये मैं चीज वापस से समझाता हूँ। देखिए कंडीशन में 3 चीजें अपने से मांग रहा है। एक तो किस फील्ड पे लगानी है, किस कॉलम पे लगानी है। कंडीशन में क्या होगा आपके, कंडीशन यानी कि ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू, व्हाटएवर द थिंग्स आर, द कंपैरिजन थिंग्स। और फिर अपने को यहाँ पर वैल्यू देनी है कि कौन सी वैल्यू से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने गलत चूज कर लिया है, इस ग्रेटर देन मेरे को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यानी कि ये केवल उन्हीं वैल्यूज को दिखाएगा जिनका स्कोर जो होगा वो 75 से अबव होगा। यहाँ पर अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट। अब ये अपने से पूछ रहा है कि क्या अपने को डिटेल्ड क्वेरी चाहिए या समरी क्वेरी चाहिए। अपने को तो क्या चाहिए, डिटेल्ड क्वेरी चाहिए। नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन द नेक्स्ट। अब ये देखिए, ये एक टॉपिक हो सकता है जो आपको कंफ्यूज करे कि सर ये अलायंस क्या होता है। अलायंस का मतलब होता है अल्टरनेटिव नेम। देखिए अपन ने जब फील्ड बनाई थी तब तो आईडी का नाम आईडी रखा, नेम का नाम नेम, फेस, स्कोर। मान लीजिए यहाँ पर आपको इसका नाम कुछ और करना है, जैसे कि आईडी को हटाकर आप जब क्वेरी देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ स्टूडेंट आईडी, यानी कि आप इसका नेम चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर असाइन कर सकते हैं अलियासेस को। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको किया नेक्स्ट। अब ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगती है इसकी क्वेरी विजार्ड की कि यहाँ पर ये अपने को क्या प्रोवाइड कर रहा है, ओवरव्यू।
ओवरव्यू में आप देख सकते हैं कि अपने को क्या क्या बता रहा है कि देखो भैया मैंने फील्ड कौन कौन से सेलेक्ट की, आईडी, नेम, फीस और स्कोर। फिर मैंने उसका सॉर्टिंग ऑर्डर क्या रखा है, नेम के हिसाब से और असेंडिंग किया है मैंने। सर्च की कंडीशन मैंने ये रखी है कि स्कोर इज ग्रेटर देन 75, इट विल नॉट इंक्लूड द 75 बट ग्रेटर देन 75। फिर कोई मैंने ग्रुपिंग नहीं की, ग्रुपिंग में अपना नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो ये अपने कुछ स्टेप्स थे यहाँ पर, जैसे ही मैंने फिनिश किया, इट इज शोइंग मी द डेटा according to the name, according to the ascending order, and my filtering has been done on this score tab. Now you can see all the data has been displaying here on the screen is above the 75 score. Mark my point. Okay, so this is how you can apply the query. ठीक है, चलिए मैं इसकी आपको ओरिजिनल टेबल दिखाता हूं। ये रीडमी टेबल, इसमें देखिए डिफरेंट डेटा है, ठीक है, बहुत सारे डेटा इसमें आप देख सकते हैं। 58 भी था, 63 भी था, 55 भी था, बट इसने इसको शो क्यों नहीं किया? बिकॉज वी हैव अप्लाइड द कंडीशन, एंड व्हाट वाज द कंडीशन? इज कंडीशन वाज दैट द स्कोर, द स्कोर शुड बी ग्रेटर देन 275. Am I clear to everyone or not? So as we have seen the practical implementation of this complete session, now it's time to understand its theory also. Okay, so do not skip it. Now, step 2, as we have seen in the practical, sorting order. It has asked us to sort your fields according to the name, according to the fields, whatever we are selecting the fields. So in the query, the ID is most important, the description is less important. So this is the theory which is based on this accounts table. So okay, so I have to take an example, so that's why I just taken this accounts number. So click on the respective field for sort by. We have further choices for sorting by other fields. Once there is a tie, whether the sorting should be ascending or descending. So what it is saying that we have options to apply the sorting order. We have option to choose the fields. Okay, and then it will ask us that whatever the sorting we are going to apply, will it be ascending or will it be descending? Okay, then clicking on the next button, then it will ask us the searching conditions. The search conditions allow us to compare the ID we are entered with the account number in our database and decide whether to include a particular ID in our query or not. So I think this is a kind of thing which we have seen, search condition, that when we have to give or we have to specify the condition whatever we want to give. If you are dealing with any kind of field, such supposingly that you want to access or you want to display the name whose name start from A only, then you can give the condition also. So whatever the condition you are going to give, you have to give in this search condition box only. Then detail or summary, then it will ask you that you want to show the query in a detailed manner or summarized manner. देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। आप लोग पूछ सकते हैं कि सर डिटेल्ड क्वेरी में और समरी क्वेरी में क्या डिफरेंस है। डिटेल्ड क्वेरी में क्या होता है कि आपको पूरा वो समराइज्ड वे में नहीं देता है, डिटेल में आपको सारे फील्ड शो करेगा। समराइज्ड में वो जो भी आपने क्वेरी लगाई है, सपोजिंगली आपने केवल नेम पे लगाया था और स्कोर पे लगाया था, तो केवल आपको नेम और स्कोर ही शो करेगा। एज वेल एज समराइज्ड जो होता है, ये अपने क्वेरी जब अपने रन करते हैं तो ये एग्रीगेट फंक्शंस के ऊपर काम करता है। नाउ यू विल आस्क मी सर व्हाट इज एग्रीगेट फंक्शंस, ये तो आपने बताया नहीं। एग्रीगेट फंक्शन अपना नेक्स्ट टॉपिक है जो सेशन नंबर 5 में आएगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि अच्छा ये समरी उसमें एग्रीगेट फंक्शन में क्यों आ रही थी। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इसके नाम पे जाइए आप। नेम हैज ऑल द आंसर, डिटेल में अपने को डिटेल में पूरी क्वेरी मिलती है और समरी में आपको कुछ सॉर्ट ऑफ थिंग्स ही मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज दैट सेलेक्ट एलियासिस इफ रिक्वायर्ड। ये देखिए ये रिक्वायर्ड होता है तभी अपने को करना है, अदरवाइज कोई इसकी नीड नहीं है। एलियासिस का मतलब है अल्टरनेटिव नेम। अगर आपको फील्ड नेम वही रखना है जो आपने एज अ टेबल रख रखी है तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज आप उसको नेम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ओवरव्यू आता है। अपन ने देखा था अभी ओवरव्यू कैसे आता है। फाइनल स्टेप जैसे अपन ने कंप्लीट किया एक पूरा ओवरव्यू, यानी कि सारी प्रॉपर्टीज को वो शो करता है कि ठीक है आपने किस पे सॉर्टिंग लगाई है, क्या आपने कंडीशन दिया है, कौन कौन से फील्ड आपने सेलेक्ट किए हैं, क्या आपने ग्रुपिंग की है कि नहीं की है। सो ऑल दैट स्टफ will come in the overview section. So we have completed the theory aspect and as well as the practical also. So now we will understand the another method of creating a query which is using the design view. ठीक है, तो अब देखिए अगर आप लोग इसको थ्योरेटिकल याद करते भी है तो कितना सिंपल सा है। हर चीज में, टेबल में भी अपने को 2 तरीके मिल रहे थे, डेटाबेस में भी अपने को 2 तरीके मिल रहे हैं, अब क्वेरी में भी अपने को 2 तरीके मिल रहे हैं, एक है विजार्ड और एक है डिजाइन।
विजार्ड जो थोड़ा लेंदी होता है बट इजी होता है, अपने नेक्स्ट 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 के थ्रू कर सकते हैं। डिजाइन व्यू क्या होता है, दिखने में तो इजी होता है बट अपने को टाइप ज्यादा करना पड़ता है, कंडीशन अकॉर्डिंगली लगानी पड़ती है। ठीक है, चलिए इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं। चलिए आप लोग बताइए कि पहले थ्योरी पढ़ाऊं या इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊं फटाफट। So as expected, you have answered me that you please sir show the practical of the query in design view। ठीक है, चलिए क्वेरीज में अपने चलते हैं। फिर यहाँ पर अपन ने देख लिया था विजार्ड व्यू, अपने डिजाइन व्यू पे क्लिक करेंगे, सिंपल सी बात है। अपने को फिर वही पूछेगा कि अपने को टेबल सेलेक्ट करनी है, जो ऑलरेडी रन क्वेरी थी उस पर सेलेक्ट करना है। तो जो अपना क्वेरी का रिजल्ट आया था वो भी आपने देखा किसके फॉर्म में आया था, टेबल के फॉर्म में आया था, यानी कि क्वेरी में भी तो वो टेबल बनी गया है ना, ये देखिए टेबल बनी गया है वो। तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर अपने जो भी टेबल है उसको अपने सेलेक्ट कर लेते हैं। सो आई एम डीलिंग विद डमी टेबल, ऐड एंड देन क्लोज। इसको अपने जो है इसको ड्रैग कर सकते हैं पूरा इसकी फुल व्यू लेने के लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए डिजाइन व्यू में आपको पता है कि जो कॉलम्स है वो थोड़ा सा इंटरैक्टिव मोड में आते हैं, जहां पर आपको इजी लगता है करने में। बट मुझे ऐसा लगता है विजार्ड व्यू इज मच मोर इजियर देन यूजिंग द डिजाइन एनीवेज। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द बोथ व्यू। यहाँ पर देखिए आपको उस नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर फील्ड है, एलियासिस है, टेबल, सॉर्ट, विजिबल, फंक्शन, क्राइटेरिया एंड ऑल। सो फील्ड वही वाली बात है, अपने को सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, फील्ड को सेलेक्ट करना होता है। फील्ड यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन पे जाइए, आपके पास आ जाएगा आईडी चाहिए, नेम चाहिए। तो सपोजली मैंने यहाँ पर नेम सेलेक्ट किया। दूसरे वाले पे गया, दूसरे वाले पे मैंने क्या सेलेक्ट कर लिया, परसेंटेज। ठीक है, अब यहाँ पर एलियासेस मुझे यही रखने हैं तो मैं इसको कुछ नहीं करूंगा। अब देखिए जैसे ही मैंने इसको किया, यहाँ पर अपने आप ही बाय डिफॉल्ट ही विजिबल पे ये जो चेक बॉक्स है इस पे ये टिक हो गया। दैट मीन्स कि नेम और परसेंटेज अपने को दिखेंगे। टेबल ऑब्वियस सी बात है, डमी चूज करी है अपन ने, इसमें भी डमी चूज कर लिया। सॉर्ट, सॉर्ट अपने को क्या करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ करना है तो कर लो। लेट्स से डिसेंडिंग करके देखते हैं। ठीक है, और परसेंटेज में भी अपने को अगर कुछ करना है तो कर सकते हैं। फिर फंक्शन में आइए, फंक्शंस में आप लोगों को बाद में बताऊंगा, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है। क्राइटेरिया, ठीक है, नेम में मुझे कुछ क्राइटेरिया नहीं देना है। परसेंटेज में लेट्स सपोज की ग्रेटर देन लेट्स से 80, जिसके पे परसेंटेज ग्रेटर देन 80 होंगे उसमें मैं देख सकता हूँ। अब यहाँ पर बच्चे मुझसे पूछेंगे कि सर ये और इतने मल्टीपल टाइम्स को लिख रखा है। ये तो हो गया अपना एक क्राइटेरिया। अगर अपने को मल्टीपल क्राइटेरिया देना है तो अपने और का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने कोई एक और फील्ड ऐड की, उसके अंदर भी मैंने कुछ किया, क्राइटेरिया दिया, तो मैं किसका कॉलम का यूज करूंगा, और कॉलम का यूज करूंगा। ठीक है, ये अपन ने क्राइटेरिया दे दिया कि परसेंटेज जिसके 80 से अबव हो। यहाँ पर देखिए आपको एक बटन दिखाई देगा टूल बार के अंदर, रन क्वेरी। इसका शॉर्टकट की आपको पता चल ही गया होगा अगर आप देख रहे हैं तो F5। ठीक है, यहां से देखिए जिसके 80 से अबव है स्कोर, वो अपने को नाम आ गया। केवल अपने को नाम और परसेंटेज ही दिखा रहा है। व्हाई, बिकॉज वी हैव सेलेक्टेड द नेम एंड परसेंटेज ओनली। सो हियर यू कैन सी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर आल्सो। नाउ यू कैन ऑब्जर्व that Mayank should first come if we will apply the ascending order, but now we have applied the descending order. That why it is displaying the Shreyans first, then Praful, then Mayank. And now you can see the percentage according to the name. Okay, 90, 89 and 88. So this is how you can create and you can run, you can execute a query using wizard way and using the what, design way. So I am clicking on the save button, then I will close it. Okay, so it hasn't applied. Now it is asking me what the name you want to give this query. So I'm not saving it, I'm just closing it. Here it is. So I hope that I'm clear to everyone, students. So now we will see the creation of query with the design view, its theory. So to create query using the design view, follow the given step. First of all, click on the queries button as we had done. Queries button में अपन ने click किया था. Then we have click on the create query in design view. ठीक है, डिजाइन व्यू में अपने ने क्लिक किया था। डिजाइन व्यू में अपने से उसने क्या पूछा था, ऐड टेबल या फिर क्वेरी। देखा था ना अपन ने, दोनों टॉपिक्स देखे थे कि टेबल भी अपने ऐड कर सकते हैं और एज वेल एज क्वेरी भी अपने ऐड कर सकते हैं। फिर सेलेक्ट द टेबल, जो भी अपने टेबल सेलेक्ट करना है, उसके बाद ऐड बटन पे आपने को क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने जानबूझ के कुछ टेबल्स के नेम लिखे ताकि आप लोग जब थ्योरी एग्जाम हो अगर तो आप लोग अपने लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्लिक ऑन क्लोज बटन टू क्लोज द ऐड टेबल और क्वेरी डायलॉग बॉक्स। मैंने भी यही किया था। मैंने क्या किया था, क्लोज बटन पे क्लिक किया था। अभी देखिए अगर आप कोई नोटिस करें तो ये जो 4 स्टेप हैं, कितने बेसिक स्टेप्स हैं और कितने इजी स्टेप्स हैं। देखने में ये लेंथी लग रहे हैं कि हाँ इसमें 4 लाइनें लिखनी है आपको, बट ये बहुत ही बेसिक से स्टेप्स हैं। क्वेरी, क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू,
add table or query, then add button and then close button. बहुत सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद अपने पास एक क्या खुल जाएगी, डिजाइन ग्रिड। आपने देखा ही था, डिजाइन ग्रिड खुल गया था अपने पास। वहां पर अपने से क्या क्या चीजें मांग रहा था, फील्ड हो गया, कंडीशन हो गई, सॉर्ट हो गया, एलियासिस हो गया, और कंडीशन क्राइटेरिया सॉरी एंड और ऑप्शंस। ठीक है, फिर अपने ने जो भी क्वेरी लगानी है लगा सकते हैं। उसके बाद रन क्वेरी फ्रॉम द इंटरफेस और प्रेस F5 की and then the output will appear. Now we will see the second method of creating a query, or you can say the tricky method of creating a query from tomorrow onwards. So this is enough for today's session. I hope you have enjoyed it.